आइटम नंबर 13 श्री नित्यानंद राय जी। महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भारत में प्रवेश करने वाले और उससे निकास करने वाले व्यक्तियों की बाबत पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों की अपेक्षा का उपबंध करने के लिए केंद्रीय सरकार को कतिपय शक्तियां प्रदान करने और वीजा तथा रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा सहित विदेशियों से संबंधित मामलों को भी नियमित करने के लिए तथा उनसे संसक्त या उनसे अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। श्री मनीष तिवारी। Thank you, Mr. Speaker, sir. Under Rule 72(2) of the Rules of Business of the Lok Sabha, I rise to oppose the Immigration and Foreigners Bill. Mr. Speaker, sir, Rule 72(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha contemplates two situations. One is opposition to a bill simpliciter, and two, opposition to a bill on grounds of legislative competence. Beyond the 7th schedule of the Constitution of India, there lies Part 3 of the Constitution. Part 3 of the Constitution codifies the fundamental rights which are available to every person / every citizen of India. This bill is in violation of those fundamental rights on multiple counts. And with your permission, allow me to enumerate those violations of fundamental rights. Clause 3(1), through its first proviso, grants omnibus powers to the Union government to restrict the entry of any foreigner into India ostensibly on grounds of national security, sovereignty, integrity, relations with a foreign state, public health, or any other reasons as may be specified by the central government. The second proviso to Clause 3(1) fails to provide an appeal mechanism against the decision of the immigration officer which violates fundamental rights, which violates the fundamental canons of natural justice and jurisprudence. Furthermore, the first proviso of Clause 3(1) vests absolute discretion in the government to prohibit the entry of any foreign national, including persons of Indian origin. This provision has the potential to be misused if any government of the day feels that the political views or ideological beliefs of any individual or consensuous dissenter are not conformist in nature with the disposition of the current establishment. This constitutes a clear violation of Article 14 of the Constitution, which guarantees equality before law and equal protection of the laws to any person, a term that explicitly encompasses foreigners also. अध्यक्ष जी 2-3 और चीजें हैं जो बुनियादी अधिकारों का हनन करती हैं और इसलिए मैं संक्षेप में, अगर आप अनुमति दें, 2-3 चीजें और हैं, मैं उसका उल्लेख कर देता हूं। Clause 14 empowers the Union government to order the closure of any premises, either entirely or for specified periods, merely on the grounds that it is frequented by a foreigner. Now, this is violation of Article 19(1)(g) of the Constitution. Clause 10. आप रूल्स के तहत 74 रूल के तहत ही विषय उठाओ ना। अध्यक्ष जी, जब भी इस सदन में कोई भी विधेयक लाया जाता है, वो विधेयक संविधान के तो अनुसार होना चाहिए। मैं तो सिर्फ उन चीजों का उल्लेख कर रहा हूं जो संविधान की पालना नहीं कर रही है। मैं सिर्फ आखिरी एक बात कहना चाहता हूं। इसमें 10वां क्लॉज है, क्लॉज 10, जो ये कहता है कि every hospital, nursing home or medical institution should furnish information regarding any foreigner admitted for treatment along with the details of the attendants. This runs counter to the established principles of medical ethics and violates international commitments, including Article 6 of the International Covenant of Civil and Political Rights.
and Article 21 of the Constitution of India. My submission, Mr. Speaker, sir, is either this bill should be withdrawn or this should be referred to a joint parliamentary committee for very careful consideration, because it violates multiple articles of the fundamental rights under the Constitution of India. से आप जो विषय पर कर रहे हैं ना, वो विषय सीमित दायरा है। ऐसे वकील एडवोकेट सब जानते हैं। अब कई बार मैं इस नियम की प्रक्रिया आपको बता चुका हूं। मेरा प्रयास होना चाहिए कि हम नियम प्रक्रिया के तहत ही। प्रोफेसर साहब, स्वागत है जी। आपको कुछ बोलना है? Yes. Something very important, that under Rule 72(1) of the Rules of Procedure, I beg to oppose the Immigration and Foreigners Bill 2025. Now, I point out to you a peculiar matter which has been caused by the truancy of the Home Minister. Because earlier the bill was listed to be introduced on 12/2/25. It was printed. I gave opposition to its introduction. The minister did not come, the bill was not introduced. Today again the bill is listed to be introduced. Today the Home Minister is not there. What is it? Is the Home Minister trying to avoid? है ना? हाँ? गृह राज्यमंत्री है ना? क्या हुआ? एक मिनट आप छोड़ो। गृह राज्यमंत्री और सबका राज्यमंत्री को भी इतना अधिकार क्यों नहीं आया आप लोग? हाँ। Let me read my objection. Sir, I beg to oppose the introduction of the Immigration and Foreigners Bill. There is already 4 acts regarding entry and exit of foreigners in the country. They have served their purpose so far, and a new law appears superfluous in their place. I object to the new laws, especially with regard to obligation of universities as well as hospital, nursing home, or any other medical institutes admitting any foreigner. This will restrict inflow of talent and know-how in the country in the fields of academic and medical science. Sir, I also like to mention that the intention of the bill is to abolish the laws. It proposes stringent fines and present terms of illegal entry, overstaying, document fraud. While the government speaks on decriminalizing the law, decriminalizing laws in general, the proposed legislation will make more stringent in case of foreigners. Bureaucrats and bureaucratic interference will make any foreigner stay in India difficult. We should encourage foreigners to enter our. दो माननीय सदस्य कुछ शंका, कुछ सवाल उठाए हैं, लेकिन पहले मैं सुन लिया पूरा। नहीं, आप कहिए तो जो बोले हैं मैं दोहरा दूं, तो मैंने पूरा का पूरा सुना है। आप आपस में डिबेट मत करा करें महोदय। मेरा ये कहना है कि मनीष तिवारी जी उन्होंने विधायी क्षमता पर सवाल उठाया। आपने उठाए हैं, बिल्कुल नहीं। विधायी क्षमता पे सवाल उठाने का रूल है, पर वो रूल्स के तहत नहीं बोले। यूं बोलो। और उन्होंने कहा है कि आप प्रवास और विदेशी विधेयक 2025 सदन की क्षमता के अंतर्गत नहीं आता है। मैं कह रहा हूं, उन्होंने उठाया सवाल सर, और तब मैं जवाब दे रहा हूं, बिल्कुल क्षमता के अंतर्गत है। भारत के इस सम्मानित सदन की क्षमता पर, अधिकार पर, और कोई शंका और कोई सवाल केंद्रीय सूची में आता है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। वही मैं आगे बोल रहा हूं महोदय। यह विषय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची 1 में क्रमांक संख्या 19 भारत में प्रवेश
तथा भारत में प्रवास और निष्कासन पासपोर्ट और वीजा के अंतर्गत आता है। ऐसे इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग डिबेट के समय में करेंगे। इन्होंने मौलिक अधिकारों पर भी कुछ बातें की हैं और अपील के प्रावधानों पर भी इन्होंने कुछ कहा है। महोदय, देश के अंतर्गत किसी भी विदेशी के प्रवेश या प्रस्थान की अनुमति देना सरकार का संप्रभु कार्य है। यह प्रावधान देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत आवश्यक है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार दुनिया में कोई भी देश किसी विदेशी को प्रवेश या प्रस्थान से इनकार करने के पहले सुनवाई पर भी, अपील पर भी उन्होंने कहा है, कोई सुनवाई का अवसर नहीं देता है। यह कार्य हर देश में इमिग्रेशन ऑफिसर्स ही महोदय करते हैं। महोदय, भारत आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है। पर्यटक यहाँ ज्यादा से ज्यादा आए, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध भी है, सुविधाएं भी दे रही है। लेकिन महोदय, देश की उन्नति, देश की संप्रभुता, शांति और देश के विभिन्न विषयों का ख्याल रखना भी सरकार की प्राथमिकता में है और जिम्मेवारी भी है। महोदय, हम किसी को रोकने के लिए नहीं ला रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ जो आए, लेकिन भारत के इमिग्रेशन का जो कानून है उस कानून का अनुपालना वह जरूर करे। यह भारत सरकार जरूर चाहती है। विशेष रूप से हम उसकी चर्चा करेंगे डिस्कशन के। दादा कहे कि यहाँ, और उन्होंने मनीष जी ने कॉज 14 के प्रावधान के संबंध में कहा है। कॉज 14 के प्रावधान वर्तमान में भी मौजूद है, ये नए प्रावधान नहीं है और विदेशियों के अप्रवासन के लिए आवश्यक है। इससे विदेशी पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी, ना कि किसी संस्था को बंद किया जाएगा। और कुछ अपने शौकत दादा भी सवाल उठाए हैं, लेकिन मैं उनको स्पष्ट कहना चाहूंगा कि वर्तमान में भी प्रत्येक हॉस्पिटल और मेडिकल संस्थाओं को विदेशियों के बारे में सूचना प्रदान करना अनिवार्य है। इस सूचना से विदेशियों का देश में रहना, रुकना और प्रस्थान एक रेगुलेशन व्यवस्थित करता है। यह एक आवश्यक प्रावधान है। यह प्रावधान वर्तमान में ऑर्डर के रूप में है महोदय। सरकार इसको मेन एक्ट में ला रही है। महोदय, मैं 2-3 मिनट समय जरूर चाहूंगा आपसे महोदय, चूंकि जो आया है उसके जो विधेयक है उसकी आवश्यकता क्यों है, इस पे हम थोड़ा 2-3 मिनट का प्रकाश डालना जरूर चाहेंगे। महोदय, आप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 में मौजूदा 4 अधिनियमों अर्थात पासपोर्ट अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी अधिनियम 1946 और आप्रवास अधिनियम 2000 को निरस्त करके आप्रवास और विदेशियों विषयक मामलों से निपटने के लिए एक व्यापक कानून का प्रस्ताव किया गया है जो आवश्यक है। 4 अधिनियमों में से महोदय 3 अधिनियम संविधान पूर्व अवधि के हैं। इसमें से प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के असाधारण समय के दौरान लाया गया था। चारों अधिनियमों में उद्देश्यों की एक अंतर्निहित निरंतरता और समानता के साथ कुछ दोहराव और ओवरलैप है, इसलिए भी यह विधेयक लाया गया है। मोदी सरकार संविधान पूर्व अवधि के कानूनों की समीक्षा कर रही है। यह विधेयक इस दिशा में एक कदम है जो संबंधित मामलों से निपटने के लिए एक कानून विदेशियों पर लागू विभिन्न उपबंधों में जैविक एकता को लाएगा। महोदय, इस विधेयक में मौजूदा 4 अधिनियमों के उपबंधों जिन्हें अभी भी आवश्यक माना गया है को अपनाया गया है ताकि कुछ उपबंधों में अस्पष्टता को दूर किया जा सके, आर्थिक प्रगति और विकास के संदर्भ में परिचालन आवश्यकताओं और वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और अनुपालन बोझ को भी कम किया जा सके। आप प्रवास कार्यों तथा उसकी एजेंसियों और पदाधिकारियों को सांविधिक
समर्थन प्राप्त करने के लिए आप्रवास चौकियों, आप्रवास कार्यों, आप्रवास अधिकारियों, आप्रवास ब्यूरो आदि से संबंधित विशिष्ट उपबंधों को विधेयक में शामिल किया गया है। विधेयक में अपराधों की कंपाउंडिंग हेतु एक विशिष्ट नए उपबंध का भी प्रावधान है। विधेयक में के उपबंधों से विदेशी और आप्रवास कानून विधिक संबंध का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित होने की महोदय उम्मीद है। अतः मैं इस सम्मानित सदन से आग्रह करता हूं कि आप इस को पारित करें और अभी मैं सम्मानित सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं। पूरे स्थापित पारित नहीं करना आज। नहीं, आज पारित करने नहीं है सर, हम आगे की बात कर रहे हैं। अभी मैंने प्रस्तुत और क्या है, हम बोले हैं सर, प्रश्न ये कि विधेयक को पूरा स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को पूरा स्थापित करें। महोदय, मैं विधेयक को प्रस्थापित करूं। अविलंब लोकमत के विषयों को उठा